हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीगन। मेरे चैनल ओमनीगन में आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडेज वीडियो इज एक्चुअली एन एनालिसिस ऑफ द HSSLC class 12 results declared by the Meghalaya Board of School Education MBOS. Okay, so how was the overall result, the overall pass percentage? Okay, I have given a report also on my website. You can check it from here, and I'll just analyze how the result was actually. Okay. So if you check my website, this is my website. Okay, here you'll find this news here. Okay, now the Meghalaya Board of School Education MBOS officially declared the results of the Higher Secondary School Living Certificate, which is HSSLC examination 2025 class 12 results actually 2025 on May 5th actually for all the 4 streams: art, science, commerce and vocational streams. Okay, so we'll basically focus on art, science and commerce. Okay. Now, in the art stream, if you see the booklet, you will see that 22,835 students appeared for the examination, out of which 18,736 successfully passed and recording a pass percentage of 82.05. So, from art stream, the pass percentage is 82.05. Okay. The science stream witnessed 3,922 students appearing with 3,253 clearing the exam and leading to a pass percentage of 82.94. So science stream pass percentage is 82.94. And in the commerce stream, 2,501 candidates appeared and out of them 2,033 of them passed and resulting in the pass percentage of 81.28. So as you can see is that the science stream has the highest among all the streams this year. Okay, 2025 results. Okay, 82.94 percentage. Okay, and now if you combine all these three, okay, 82.05, 82.94 and 81.28, then you will see that with consistent performances across stream, the overall pass percentage for the arts, science and commerce streams combined stands at 82.09. So if you combine all these 3 streams, then you will see that the overall pass percentage of arts, science and commerce is 82.09. Okay, I'll just show you the results also. I have already shown you also. Okay, 82.94 for science stream. Then you have for commerce stream, you have 81.28. Okay, and for art stream, you have 82.05. Now, I know that re-evaluation is going on and many students have applied for re-evaluation. Okay, but you are given a very less time to apply for re-evaluation, and then after checking the papers, you will have to go back to MBOS again. If you have any doubts, or if you after checking, if you see that the marking has been, there are questions and answers or true and false or any short questions and answers also, even the grammar portion, if you feel that any answer is correct but that has been marked wrong, अगर आंसर आपका करेक्ट है लेकिन रॉन्ग मार्क्स किया गया है, तो उसके लिए आप री एवेल्युएशन कर सकते हैं और उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर्स हैं. यू हैव टू विजिट एम्बोस, वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है. यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, then you'll be given a xerox of your answer script. You can bring that answer script back home, show your teachers, okay, confirm from your teachers and verify whether the marks given are satisfactory according to you, whether there are any answers that you had written correctly but it was marked wrong. कोई ऐसा आंसर है अगर जो आपने करेक्टली लिखा है लेकिन उसको रॉन्ग मार्क किया गया, तो उसके लिए आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं with a desired fees. I think the desired fees for one subject is 2,200 rupees. जितना मुझे पता है, for one subject it is xerox of your mark sheet, applying for re-evaluation, फिर रीचेकिंग, इन सब का जो कॉस्ट है पर सब्जेक्ट इज आई थिंक 2,000 प्लस रुपीज. ओके, 2,000 प्लस रुपीज, 2,000 से थोड़ा ऊपर लगता है. दिस इज फॉर वन सब्जेक्ट ओनली, पर सब्जेक्ट. So it depends how many subjects you are going to apply for re-evaluation. So you'll have to pay accordingly. 2 subjects will be 4,000, 3 subjects will be 6,000, 6,000 plus actually, not 6,000, 6,000 plus. Okay. As far as my knowledge is concerned, I think last year or I think in 2024 or 2023, one student had come to me to check the answer script and he had to pay 2,200, okay, for one subject. So he had applied for 5 subjects re-evaluation और उसके लिए उसका करीब 12,000 रुपया लगा था. ओके, for re-evaluation. Okay, so you are given a very specific time, okay, very specified time, very less time to apply for re-evaluation, and then after
अप्लाइंग फॉर रीइवैल्यूएशन व्हेन यू आर गिवन योर आंसर स्क्रिप्ट, जब आपको जेरोक्स दिया जाता है आंसर स्क्रिप्ट का, तो उसको आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं आप, यू कैन सबमिट that for that also I think you are given some 3 days time, in my opinion. Total I think you have a 10 days of time to apply for re-evaluation, and then once you bring your answer script home, I think you have 3 days or 4 days time with you to do the necessary corrections and go back to Embos and inform them that ये मिस्टेक हुआ है, इसमें मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो उसके लिए बहुत कम टाइम है. तो आई होप दैट मे बी यू हैव अप्लाइड फॉर री इवेलुएशन. ओके, if you have not, then I don't know whether the last date has gone or it has not gone. You can check from Embos also. आप Embos में जाके, Embos ऑफिस में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, अगर आपने इन केस अगर आपने रीएवल्यूशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो. ओके, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं. मैंने वीडियो बनाया है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, कंपार्टमेंटल एग्जाम्स एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स. ओके, मैं फिर से दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इन दिस वीडियो. लेट मी जस्ट रिपीट वन सेकेंड फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, आई विल नॉट मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम. एनी स्टूडेंट हु हैज फेल्ड, यू विल हैव टू राइट एग्जाम नेक्स्ट ईयर. आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आपके मार्कशीट में फेल लिखा होगा, if in your mark sheet you see the word fail, then you can go for, you are eligible for compartmental exams. तो आप compartmental exam दे सकेंगे. Actually I had made a video but still students are asking me questions there, sir अगर मैं 2 सब्जेक्ट फेल हो गया तो मैं क्या मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो बट स्टिल आई डोंट नो, मेनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन. तो लेट मी टेल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ कि अगर आपके रिजल्ट में फेल वर्ड लिखा होगा, इफ इन योर रिजल्ट यू सी द वर्ड फेल, देन क्लास 12 स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम्स. अगर आपने एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो आप एक सब्जेक्ट एक्चुअली इज अलाउड, यू आर पास ओनली. अगर आपने 2 या मोर सब्जेक्ट्स में अगर आपने फेल किया है तो वो फेल ही माना जाता है, दैट इज कंसिडर्ड फेल ओनली. तो ये जो 2 सब्जेक्ट है या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप दोबारा एग्जाम लिख सकते हैं. ओनली दिस 2 और 3 सब्जेक्ट्स और मोर सब्जेक्ट्स you can write exam, but next year those subjects you have passed, you cannot write any exam on that. अगर आपने अगर इंग्लिश में फेल किया है तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट है. अगर आपके रिजल्ट में, आप देखिए आपके रिजल्ट में फेल लिखा होना चाहिए, अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा होना होगा, इफ इन योर रिजल्ट द वर्ड पास इज रिटन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम. आप कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकते, ठीक है. यू कैनॉट गो फॉर एनी एग्जाम से 1 सब्जेक्ट फेल भी तो पास होता है, राइट और रॉन्ग. आउट ऑफ बेस्ट ऑफ 5 यू हैव 4 सब्जेक्ट है, आपका 4 सब्जेक्ट है. तो अगर आपने एक सब्जेक्ट में फेल किया, वो आपका 4 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट बन जाता है, तो आपके रिजल्ट में आएगा पास. तो अगर आपके रिजल्ट में पास आता है, इफ पास वर्ड इज देयर इन योर रिजल्ट, यू कैन नॉट राइट एनी एग्जाम इवन इफ यू हैव फेल्ड 1 सब्जेक्ट. अगर आपने एक सब्जेक्ट में फेल भी किया है तब भी आप कोई एग्जाम नहीं लिख सकते, कोई इंप्रूवमेंट, सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंटल, कोई भी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने पास किया है एग्जाम. तो जिन्होंने फेल किया है, जिनके मार्कशीट के ऊपर फेल वर्ड लिखा है, FAIL फेल, ठीक है, वो ही उन फेल सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हैं, बट अगले साल, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर. ठीक है, मैंने एक बहुत इलेबोरेट वीडियो बनाया, आप स्क्रीन पे देख लीजिए. उस वीडियो का जो एक स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे डाला, आप देख सकते हैं. ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंटल एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स. ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 के लिए नहीं है. नंबर 1, सप्लीमेंट्री एग्जाम सिर्फ क्लास 10 के लिए है, 12 के लिए नहीं है. यू आर ओनली एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम्स. लेकिन अगर आपने फेल किया है, तो अगर आपने आपके मार्कशीट में अगर फेल वर्ड लिखा है, तभी आप उन फेल सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं. वो 2 सब्जेक्ट हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, और ये सारे स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है. साइंस ऑल्सो, आर्ट्स ऑल्सो, कॉमर्स ऑल्सो, ठीक है. इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं या साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है या कॉमर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल है. नो, ऑल आर एलिजिबल, ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोविजन. ये प्रोविजन, ये फैसिलिटी पूरे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, इट दैट डज नॉट मैटर. ओके, लेकिन एग्जाम आपको अगले साल ही लिखना होगा. फॉर्म फिलअप वगैरह कब आएगा कब नहीं आएगा, उसके लिए आप ये वीडियो प्लीज़ देखिए. वन सेकेंड, आई एम शोइंग यू इट ऑन द स्क्रीन. इस वीडियो को आप दोबारा देखिए. ओके, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको खबर मिलेगा, हाउ यू विल गेट द न्यूज़ ऑफ फॉर्म फिलअप. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब फरवरी या मार्च में, जब नेक्स्ट ईयर आपका
एग्जाम होगा तब आप उन स्टूडेंट्स के साथ जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उन स्टूडेंट्स के साथ, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास 12 में जो अभी है इस साल जो है, वो नेक्स्ट ईयर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जब देंगे, तब आप जो है जिन्होंने फेल किया है वो स्टूडेंट जो है उनके साथ दोबारा एग्जाम लिख सकता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम्स। मतलब जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने फेल किया है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम लिख सकते हैं, बट अगले साल, ठीक है, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। उसके लिए फॉर्म फिलअप का जो डिटेल्स है वो सारा आप जो है इस वीडियो में देख लीजिए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वंस अगेन आई एम गिविंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज वॉच दिस वीडियो, ओके। Another information that I would like to give to all of you is regarding the syllabus. Okay. Now, last year, I'm sorry, this year, early this year, okay, I think January, February, a notification came from MBOS. The notification was that class 11 or class 12 क्वेश्चन पैटर्न इज गोइंग टू बी नाउ सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न। आपको पता है कि आपके जो बुक्स है, एडिशनल इंग्लिश को छोड़ के, सिर्फ एडिशनल इंग्लिश को छोड़ के आपके जो बाकी सारे जो बुक्स है, ओके, वो सारे जो है वो सीबीएसई बुक्स है। तो जो भी आपका सीबीएसई बुक्स है उसका क्वेश्चन पैटर्न भी सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न ही होगा। अब आपको सीबीएसई क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सीबीएसई क्वेश्चंस। आप क्लास 12, 11 और 12 के क्वेश्चंस जो है, जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में है वो क्लास 11 में है, और जो क्लास 12 में है वो 12 के क्वेश्चन पेपर्स चेक कर लीजिए। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी वेबसाइट्स अवेलेबल। ओके, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएगा। तो क्लास 12, क्लास 11 ऑलरेडी सीबीएसई क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पैटर्न है स्टार्टेड। क्लास 12 के लिए अगले साल आप जो एग्जाम लिखेंगे उसके लिए सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न ही होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं इस साल, तो क्या उनके लिए सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न होगा? क्या नया क्वेश्चन पैटर्न आएगा? देखिए, ये मैं अभी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट टेल यू दिस नाउ, ठीक है, ये मैं अभी नहीं बोल सकता। क्यों? बिकॉज एम्बोस मे गिव अ नोटिस ऑन दिस। एम्बोस इसके लिए कोई नोटिस दे सकता है। क्या वो ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम देंगे? जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, क्या वो ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम देंगे या न्यू सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम देंगे? ये मैं अभी नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट टेल यू दिस राइट नाउ। व्हेन नोटिफिकेशन विल कम फ्रॉम एम्बोस, आई विल इन्फॉर्म यू। यू कैन ऑल्सो चेक द एम्बोस वेबसाइट, ओके। बट ये बोलना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर इज नो सच नोटिस राइट नाउ फ्रॉम दी एम्बोस। आई हैव चेक बट आई हैव नॉट फाउंड एनी सच इन्फॉर्मेशन, ओके। तो आप भी अपनी तरफ से चेक करते रहिए। यू ऑल्सो प्लीज कीप चेकिंग फ्रॉम योर साइड। क्या स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, क्या वो न्यू पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, या ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न में ही उनको एग्जाम लिखना होगा? ये आप प्लीज चेक कर लीजिए फ्रॉम एम्बोस वेबसाइट। इफ आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू, ठीक है, मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट एज फॉर नाउ देर इज नो सच नोटिफिकेशन, ठीक है। बट बेसिकली जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर क्लास 12 के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो इस साल क्लास 12 में प्रोमोट हुए हैं फ्रॉम क्लास 11, दोज आर गोइंग टू राइट न्यू एग्जाम्स, ओके, जस्ट प्रोमोटेड इन क्लास 12। फॉर देम सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न ही होगा, बट नॉट, देयर आर सम सब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड। कुछ सब्जेक्ट्स है जिसको एक्सक्लूडेड किया गया है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। आप ये स्क्रीन देख लीजिए, आपको ये वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो में जाके आप देख लीजिए, ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। ओनली वन सब्जेक्ट दैट आई एम कंफर्म्ड राइट नाउ इज एडिशनल इंग्लिश। एडिशनल इंग्लिश जो है वो सीबीएसई टेक्स्ट बुक नहीं है, वो मेघालय एडिशन ही है। उसके लिए ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न ही होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न ही होगा, जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन पैटर्न है वही होगा। लेकिन बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है, स्पेशली इंग्लिश एंड ऑल, ओके, फॉर दैट द न्यू सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न विल बी देयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए फॉर दी सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न में होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो सीबीएसई क्वेश्चन पैटर्न में नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड किया गया है। So for this you please check the video, okay? So I will not make the video longer, I will end the video here. I hope all of you have I've been able to clarify, very clearly explain to you about everything, ठीक है। तो प्लीज जो स्क्रीनशॉट्स मैंने दिखाया है, प्लीज वो वीडियोस आप देख लीजिए, और एंड स्क्रीन में भी मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इन द एंड स्क्रीन ऑल्सो आई विल पुट द लिंक्स ऑफ द वीडियो। आप प्लीज वो वीडियोस देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ठीक है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग सो मच लव, एंड प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू so much for watching. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you so much.